students, welcome to my English literature class of grade 7. Students, before commencing the chapter, first of all we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, come to this assignment, preparatory assignment number 1 for your exams, for the preparation of your exams. Chapter number 2, Rhythm and Money. Come to the word meanings: menace, danger; sauntered, relaxed; jab, hit with a closed hand; overload, someone who has great power; wily upstart, someone who has suddenly risen in a rank or importance; degrading, of a lower degree; offensive, expression of anger or irritation; scoundrel, someone who treats other badly; adjourned, moved to another place; secluded, isolated; flared, became angry suddenly, ferociously, in an extremely violent way; dispensed, done away; repudiating, rejecting. Question answers. Students, come to the first question. Why was the whole class impressed with Razam? सारी क्लास रज़म के साथ क्यों इम्प्रेस थी? The whole class was impressed with Razam because he was a newcomer, क्योंकि वो न्यूकमर था स्कूल में, क्लास में. He dressed very well. वो उसकी जो ड्रेस थी वो बहुत अच्छी होती थी. He was the only boy. वो एक अकेला बॉय था in the class who wore socks, shoes, fur cap and tie and a wonderful coat and knickers. वो सिर्फ अकेला बॉय था उस क्लास में जो वॉर करता था सॉक्स भी, शूज़, फर कैप, टाई एंड वंडरफुल कोट एंड कनिकर्स. ही केम टू द स्कूल इन द कार. वो कार में स्कूल आता था. एज वेल एज ऑल दिस ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट. वो कार में आता था हमेशा स्कूल में और उसने प्रूव कर दिया था क्योंकि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है. ही आल्सो स्पोक वेरी गुड इंग्लिश. वो इंग्लिश को भी बहुत अच्छे बोलता था. What had Mani decided to do with Razam? What was Swaminathan's reaction? Mani had decided to bundle up Razam and throw him into the river. Mani ने decide किया कि वो Razam को throw कर देगी river में. Swaminathan expressed his fear by saying that Razam's father was a superintendent. जो Swaminathan था उसने Razam के mind में fear create कर दिया कि उसका जो father है वो पुलिस में superintendent है और वो जो superintendents होते हैं पुलिस वाले वो बहुत awful होते हैं. तो उसके Mani के mind में उसने fear क्रिएट कर दिया क्योंकि वो रज़म को थ्रो करना चाहती थी रिवर में. What did the teacher ask Swaminathan to do? Was the later happy or angry to get this punishment? टीचर ने क्या कहा था स्वामीनाथन को करने के लिए? क्या वो हैप्पी था इस पनिशमेंट से? The teacher asked Swaminathan to stand up on the bench. तो टीचर ने उसको बोला था स्वामीनाथन को कि वो बेंच के ऊपर खड़ा हो जाए. एंड स्वामीनाथन स्टूड अप और वो खड़ा हो गया विदाउट अ प्रोटेस्ट. यस, ही वाज ग्लैड दैट ही वाज गिवन दिस supposedly डिग्रेडिंग पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ द केन. और वो ग्लैड था, खुश था क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली थी सिर्फ बेंच के ऊपर खड़े होने के लिए. उसको मीन्स उसकी जो टीचर थी उसने कोई केन नहीं यूज़ किया. उसको वो जो पनिशमेंट थी वो बहुत पोलाइट लगी, वो स्ट्रिक्ट नहीं लगी, तो इसलिए वो खुश था. वेयर हैड द थ्री डिसाइडेड टू मीट टू प्रूव दैट रज़म वॉज अ मैन? कहाँ पे वो तीनों जाने मिले थे? किस जगह पे उन्होंने तीनों जानों ने मीट किया था एक दूसरे को और उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो रज़म है वो मैन है. प्रूव करने के लिए रज़म जो है वो मैन है. उस सीन को हमने डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब द इवनिंग सीन द नेक्स्ट डे. द थ्री डिसाइडेड टू मीट एन नेलापस ग्रोव टू प्रूव दैट रज़म वॉज अ मैन. वो तीनों जाने नेलापस ग्रोव में मिले प्रूव करने के लिए कि जो रज़म है वो मैन है. इट वॉज पास 6 एंड द ट्रैफिक फॉर द डे बिटवीन द बैंक्स वॉज ओवर. 6 बजे हुए थे शाम के. जो ट्रैफिक था वो इतना ज़्यादा नहीं था उस रिवर के पास. द
यूजुअल इवनिंग क्राउड वॉज फार बिहाइंड देम, जो इवनिंग क्राउड था वो भी बहुत दूर था, मीन्स वो इतना ज़्यादा नहीं था. स्वामीनाथन एंड मनी वर स्क्वेटिंग ऑन द सैंड. स्वामीनाथन एंड मनी वर स्क्वेटिंग ऑन द सैंड. जो स्वामीनाथन और मनी है वो स्क्वेटिंग कर रहे थे सैंड के ऊपर. वाई वॉज द मनी स्टार्टल्ड व्हेन रज़म अराइव्ड. मनी क्यों शॉक्ड हो गई, मीन्स हैरान हो गई जब रज़म आया. Mani was startled when Razam arrived because Razam shouldered his gun and fired a shot in the air. क्योंकि जब रज़म अराइव हुआ उसके शोल्डर के ऊपर गन थी और उसने शॉट किया फायर में, एयर में. उसने उस गन के साथ शॉट किया एयर में. तो ये बात देख के जो मनी थी वो शॉक्ड हो गई क्योंकि उसके पास भी गन नहीं थी. जब उसने रज़म को देखा कि उसके हाथ में गन थी तो वो एकदम से हैरान हो गई. Why did Mani think that Razam was being unfair? तो उसने क्यों सोचा कि जो रज़म है वो अनफेयर है. Mani felt that Razam was being unfair because Razam had a gun while Mani did not. उसने देखा कि जो रज़म है उसके पास गन है, मनी के पास नहीं है. It was supposed to be hand to hand fight between them. उसने देखा कि रज़म के पास गन है, उसके पास नहीं है. एंड इट वॉज पोज्ड टू बी अ हैंड टू हैंड फाइट बिटवीन दैम. उसको लग रहा था कि उनके बीच में हैंड टू हैंड फाइट होएगी. तो ये बात देख के वो जो रज़म थी वो शॉक्ड होगी. मनी जो थी वो शॉक्ड होगी उसको देख के रज़म को कि उसके पास उसके शोल्डर के ऊपर गन है, मेरे पास नहीं है. So students, I hope all of you have understood these question answers as well as word meaning of this chapter. In the next video, we will discuss the extracts of this chapter. Thank you. Have a nice day.